So we discussed simple, partial and multiple correlation as a concept. Now we shall be discussing partial correlation in detail. So far as the computation and concept of simple correlation is concerned, we have already discussed, and for the same you can look into the other lectures which we have already delivered. We calculate correlation to know the relationship between two variables, but the relationship may be affected by some other variables. There are two ways of controlling or ruling out the influence of undesirable or intervening variables on the two variables being correlated. मतलब जो शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया, if we have to find the relationship between 1 and 2 by neutralizing the third variable, that is 3, there are two ways. The first way is very difficult. What is the first way? Let us try to understand with the help of an example. There are two variables being correlated. One calls for experimental technique in which we can select students of the same intelligence, socio-economic status, age, health and physique, and thus apply the matching pair technique. मतलब यह कि हम लोग ऐसा सैंपल ही सेलेक्ट करेंगे जिसमें समान इंटेलिजेंस वाले, समान सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले, एज वाले, हेल्थ एंड फिजिक वाले लोग हों, तो इस तरह से हम लोग इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. However, to select and make use of such a sample is quite impracticable. Here, we may have to reduce drastically the size of our sample, otherwise matching them for so many factors will be a cumbersome task. Also, it will neither be feasible nor appropriate. मतलब यह कि जब हम दो ग्रुप को इक्वेट करेंगे, इतने सारे वेरिएबल्स, यदि 3 है तो भी बहुत ज्यादा है. हमने तो बहुत सारा एज और बहुत सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फिजिक, हेल्थ आदि वेरिएबल्स को लिया है, तो क्या इस तरह से सैंपल खोजना आपको लगता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. मतलब यदि हम एक लाइन में कंक्लूड करना चाहें तो ये कहेंगे कि ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना लगभग असंभव है. लिहाजा ये जो एक वेरिएबल के इफेक्ट से बचाकर दोनों का रिलेशनशिप निकालना हो तो हमको कुछ दूसरा सोचना होगा. और अभी हमने देखा कि हमारे पास एक कोरिलेशन है पार्शियल आउट, जिससे थर्ड के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम पार्शियल आउट कर सकते हैं. इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस, sometimes such situations arise when one has to separate the effect of third, fourth or fifth variable from the correlation of two variables. मतलब हम सिर्फ 3 वेरिएबल की बात नहीं करें, यदि 5 भी वेरिएबल हैं और हम उसमें से किसी 2 वेरिएबल के इंडिपेंडेंट रिलेशन को बाकी 3, 2 या 1 के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में the fourth or fifth variable from the correlation of two variables, the procedure to do so is known as partial correlation. The method used to nullify the effect of third variable or a number of other variables, मतलब 4, 5, 6, upon the two variables being correlated is partial correlation. मतलब partial correlation की मदद से
n वेरिएबल के रिलेशनशिप को देखने के लिए हम सिर्फ दो का इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप देखेंगे, बाकी वेरिएबल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और यही इसका स्ट्रेंथ है। और इसी काम में पार्शियल कोरिलेशन का इस्तेमाल भी होता है। When only one variable is held constant, we speak it first order partial correlation। जैसे ये है, एक वेरिएबल इसको हेल्ड कर लिए और 1 और 2 के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। We speak it first order partial correlation। The numbers to be right of decimal point represent variables whose influence is ruled out। हमने शुरू में वहां भी पहला जो पार्ट था हमारे लेक्चर का, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जो पॉइंट के बाद है वो उसको हम लोग पार्शियल आउट कर रहे हैं, और बाकी जो लेफ्ट साइड में है उसके इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को हम लोग मेजर कर रहे हैं। Those to the left are present the two correlated variables। Partial correlation is useful in situations where the effect of some variables have to be eliminated, जो हमने अभी देखा भी। But its main value lies in that it enables us to set up a multiple regression equation of two or more variables by means of which we can predict another variable or criterion। मतलब प्रेडिक्शन का भी हम काम करते हैं, मतलब रिग्रेशन और प्रेडिक्शन में भी इसका इंप्लीकेशन है, और ये बड़ा इंप्लीकेशन माना जाता है यदि हम किसी को रूल आउट करते हैं, या पहला हुआ, और दूसरा हम लोग इसी की मदद से रिग्रेशन और प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं, और इसके बारे में भी हम आगे की स्टडीज में अलग से रिग्रेशन प्रेडिक्शन पे भी हम लोग काम करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में सूत्र लिखा था R12, ये R12.3, मतलब ये क्लियर है कि जो यहां दोनों है उस दोनों के बीच में हम लोग इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप देख रहे हैं, और ये जो पॉइंट के या डेसिमल के राइट साइड में है उसको पार्शियल आउट कर रहे हैं। और हमने आपको फॉर्मूला लिखना भी बताया कि ये तो R12 जो यहां है वो इसमें से माइनस होगा 1 के साथ 3, और फिर 1 के साथ 2 के साथ 3। और यदि हम इसको इंटरप्रेट करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिलेशनशिप, सिंपल रिलेशनशिप हम निकाले 1 और 2 का, मतलब वेरिएबल 1 का 2 के साथ, वेरिएबल 1 का वेरिएबल 3 के साथ, वेरिएबल 2 का वेरिएबल 3 के साथ। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन के लिए जहां 3 वेरिएबल्स हैं, हमको 3 कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा, जो यह है, यह है, यह है। और इसी का नीचे हम लोगों ने सूत्र लिखा A1 माइनस R13 स्क्वायर, और फिर 1 माइनस R23 स्क्वायर, 23 स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है इसी की मदद से हम लोग पार्शियल आउट, हम लोग बाद में सवाल भी बनाना सीखेंगे, और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इसमें करेंगे। यहां क्या है, देयर आर वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल है 1 2 3। पहला काम क्या करेंगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, मतलब कितने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे हम, 3। और उन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रख के हम ये वेरिएबल 1 और 2 का रिलेशनशिप बाय न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो इसको यदि हम ये मान ले, यहां इसको हम लिख दें इक्वेशन 1, यहां मिटा दें, इसको लिख दें इक्वेशन, ये लिख दें हम। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हम लोग कर रहे हैं पार्शियल आउट द इफेक्ट ऑफ थर्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब यहां थर्ड वेरिएबल को पार्शियल आउट कर रहे हैं और 1 2 का
इसी तरह से यदि हमको पार्शियल आउट सेकेंड टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड, अब न्यूट्रलाइज करेंगे 2 का। अब फॉर्मूला भी उसी तरह से लिखेंगे, R13 माइनस R12 और R23, क्योंकि 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन 23 और 32 कोई अंतर है नहीं। और इसी को फिर यहां नीचे 1 माइनस R12 स्क्वायर, और फिर इसको घेर दे 1 माइनस R23 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, यहां किसको पार्शियल आउट कर रहे हैं? 2, और ये फॉर्मूला आपका हो गया। यदि इसको हम मान ले b, हम तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिख के, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आपको फॉर्मूला लिखने भी आ जाए। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल आउट फर्स्ट टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 3। ऑब्वियस है कि 2 और 3 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा R23, और पार्शियल आउट किसको कर रहे हैं? पहले वेरिएबल को। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हम बाद में देखेंगे। तो R23 तो होगा माइनस R12 और R13, यहां फिर नीचे वही आ जाएगा राइट साइड में जो है 1 माइनस R12 का स्क्वायर, सॉरी 2 बार लिखा गया, और फिर 1 माइनस R13 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग जिसको पार्शियल आउट करना है उस दोनों को, यदि थर्ड ऑर्डर का है तो ऐसे करके लिख देंगे 2 3 और 2 3 के बाद 1, मतलब हम लोग 2 और 3 का इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप देख रहे हैं, पार्शियलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल 1। और इसी तरह से आप और भी, यदि 4 है तो भी बाद में उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव learn how to partial out the effect of one variable to find out the independent relationship between 2 other variables, and we have already taken यहाँ 1 2 का इंडिपेंडेंट रिलेशन, थर्ड पार्शियल आउट, यहाँ 1 3 का इंडिपेंडेंट रिलेशन, 2 पार्शियल आउट, यहाँ वेरिएबल 2 3 का इंडिपेंडेंट रिलेशन बाय पार्शियलिंग आउट द effect of variable 1. So this is all about the concept partial correlation and the formula that is being used to find out the partial correlation. Thank you very much.